Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. Students, all of you learned in the previous classes about the microorganism and another very important, that's a bacteria. Now today's point is related with the fungi, right? Fungi is really, we classified some organism as Monera, Protista, and then fungi. Do you remember that? And again plantae, and last one is animalia. So when we talk about the bacteria, then bacteria is just a member of Monera. If you talk about the protozoa, that is the part of Protista. But if you talk about the fungi is a complete kingdom. Among 5 kingdom classification proposed by the R.H. Whitaker, that was the one of them is obviously related with the fungi. So I hope everything is clear, and today we will learn about the fungi. As all of you know, this one is unicellular, again unicellular, but here prokaryotic, here eukaryotic, and in this particular generally multicellular, but sometimes it is also unicellular. Okay, sometimes. So we conclude from that point, some fungi, some member of the fungi are unicellular. Only you just very common example of unicellular fungi, that is yeast. You remember yeast fermentation process in class 7 respiration? Obviously, Louis Pasteur discovered a process of fermentation where glucose is converted into ethanol, of course, and that process is accomplished by the yeast, right? Yeast is the unicellular fungi. Okay, so you must be careful with that information. And except yeast, all the fungi are multicellular, right from the mucus, bread molds, or mushroom, whatever you also seen. So all the fungi are not microscopic, but most of them are microscopic in nature, like mushrooms are there, which are larger in size, shape and size, of course. So first point is there about the fungi, maybe unicellular like yeast, maybe multicellular like rest of other except yeast. Now if you talk about the fungi arranged as a thread like structure, their cell arranged as a thread like structure, and that thread is called hyphae. What is called? Their thread is called hyphae. hyphae किसको कहते हैं? समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फंजाई होता है ना, वो थ्रेड के रूप में रहता है, धागा जैसा रहता है, उसका सेल्स अरेंज होता है धागा के जैसा, और उसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं, राइट? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हाइफी किसको कहते हैं? जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं, राइट? तो ये समझ में आ गया कि लाइक हाइफी किसको कहते हैं? फंजाई के थ्रेड का एक अलग से नाम है, उसको क्या कहते हैं? हाइफी। अब चलते हैं हाइफी के बाद। जानते हो बहुत सारा ना हाइफी एक साथ होता है, इसका भी सेल इस तरीके से अरेंज होगा, तो बहुत सारा ना हाइफी एक साथ होता है। और जब बहुत सारा हाइफी एक साथ होगा तो उसको क्या कहेंगे पता है? माइसीलियम। क्या कहेंगे? माइसीलियम। माइसीलियम मतलब ग्रुप ऑफ हाइफी। समझ में आया? ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। जैसे मान लो सेल कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म्स टिश्यू, ऐसे ही बहुत सारा हाइफी एक साथ आकर के क्या बना लेता है? माइसीलियम। आगे से यदि माइसीलियम बोला जाए तो समझ जाना क्या किस बारे में बात हो रहा है? ग्रुप ऑफ हाइफी का। और हाइफी या माइसीलियम एक स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ यूज होगा कहाँ पे? फंजाई के अंदर। ओके, तो हाइफी माइसीलियम के बाद हमें ये समझना होगा कि इसका सेल ना, अभी आप सोचो
बैक्टीरिया था उसका सेल वॉल था अलग से, राइट, और इसका सेल वॉल अलग अलग केमिकल कंपोनेंट से बना था। ऐसे इसके पास भी ना सेल वॉल होता है, सेल के आउटसाइड में सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल ना काइटिन से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? काइटिन से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो काइटिन क्या है? काइटिन इज अ केमिकल कंपाउंड। Like if you talk about the plant cell, then plant cell is made up of cellulose. Similarly, if you talk about the bacterial cell, then glycoprotein. Similarly, जैसे कि फंजाई का सेल वॉल अलग कंपाउंड से मिलकर बना होगा, और वो कौन सा कंपाउंड होगा? काइटिन होगा। काइटिन वही है जो इंसेक्ट में रहता है, याद है? इंसेक्ट छोड़ दो, आप यहाँ पे ना जू होता है, आपके बाल में जू होता है जू होता है, ओके। जू को ना जब आप उसको ब्रेक करते हो, उसको मारना चाहते हो, तो बहुत एक आवाज आता है, राइट। और ये क्या होता है? काइटिन का लेयर होता है। यही काइटिन का लेयर ब्रेक होता है, यही काइटिन का लेयर टूटता है, तो इसको क्या कहते हैं? ये एक कंपाउंड है, और ऑब्वियसली ये काइटिन का लेयर है। तो ये काइटिन को आप याद रखोगे, ओके। अब चलते हैं माइकोलॉजी किसको कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं पता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, अच्छा, आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। इसी तरीके से ना फंजाई का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं ना, उस ब्रांच को क्या कहते हैं पता है? माइकोलॉजी। अच्छा, और भी बहुत सारा लॉजी है। एल्गी को जब बताएंगे तो वहां फाइकोलॉजी आ जाएगा, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे करके बहुत सारा लॉजी मीन्स होता ही है स्टडी। माइको मतलब फंजाई, फाइको मतलब एल्गी, और उसके साथ में लॉजी लगा हुआ है, मतलब माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। तो आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसका ये तो समझ में आ गया कि इसका सेल जो होता है वो ऑब्वियसली यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, सिंगल थ्रेड को हाइफी कहेंगे, और ग्रुप्स को ऑफकोर्स माइसीलियम कहेंगे। इसका सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना होगा, इसके स्टडी को माइकोलॉजी कहेंगे। बट ये खाना कैसे बनाएगा? ये तो सेल्स के बारे में हो गया ना बातचीत, कि चलो ठीक है, सेल्स के बारे में आपने जान लिया, इतना काफी है। अब आप ये समझो ना, खाना कैसे बनाएगा, इसका लाइफ प्रोसेस कैसे चलेगा। तो खाना कैसे बनाएगा? तो ऑफकोर्स ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके पास ग्रीन कलर का सब्सटेंस तो है नहीं जो फोटोसिंथेसिस करेगा। If is it heterotrophic nutrition, they have three options. One of them is saprophytic. It means they will obtain their nutrient from dead decayed material. एक तो बात ये हो गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो ये होता है कि सैप्रोफिटिक के बाद हो सकता है कि कुछ फंजाई ऐसा भी हो जो दूसरे के बॉडी से दूसरे प्लांट से, दूसरे एनिमल से, दूसरे लिविंग से फूड लेता हो। तो ये पैरासिटिक हो गया। तो पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक, ये दो तरीके का न्यूट्रिशन हो गया। बट जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि ये सिम्बायोटिकली भी एसोसिएट करता है। याद है सबसे पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या पढ़ा था आपने? अच्छा, राइजोबियम पढ़ा। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया था लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर। इट्स ओके, उसको रहने दो, बैक्टीरिया के बारे में पिछले वीडियो के सेक्शंस में बताए ही थे। ओके, बट आप सोचो लाइकेन, दूसरा एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज अ symbiotic association between algae and fungi। ये symbiotic association है किसका किसका? algae और fungi का, और उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? प्लांट जो एल्गी होता है ना, उसके पास रूट नहीं होता है एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर, तो फिर फंजाई वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी के पास क्लोरोफिल है, दोनों खाना बना करके एक दूसरे को शेयर करता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन आता है, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होगा? माइकोराइजा के अंदर फंजाई होगा, और फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। हायर प्लांट्स को क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन मिल जाएगा, और उससे ये फूड ऑब्टेन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स था कि लाइक न्यूट्रिशन कैसे करेगा। तो न्यूट्रिशन करेगा तीन मेथड से। नंबर फर्स्ट पैरासिटिक,
नंबर सेकेंड सिम्बायोटिक, नंबर थर्ड सैप्रोफिटिक। अब इससे आगे का बात चलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। ये रिप्रोडक्शन करेगा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। क्या होता है स्पोर? स्पोर्स का फॉर्मेशन करके जो स्पोर एयर के थ्रू, विंड के थ्रू भी एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन ये मेनली स्पोरुलेशंस के थ्रू करता है, स्पोर्स के थ्रू करता है, और ये अपना फूड को ना स्टोर करता है किस फॉर्म में पता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आज हम लोग क्या सीखे उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, इट्स ओके। फंजाई का सेल जो होगा वो बेसिकली काइटिन का लेयर से बना हुआ, उसका सेल वॉल काइटिन का लेयर से बना हुआ होगा। सिंगल थ्रेड को हम हाइफी कहेंगे और पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। तो ये बातें हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये भी समझ में आया कि लाइक इसका स्टडी को माइकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद इसका न्यूट्रिशन जो होगा वो सिम्बायोटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, या फिर सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। और फिर आगे चल के पता चला कि ये अपने फूड को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर रखता है। अच्छा देखो एक बात समझो, सारे एनिमल्स, सारे लिविंग ना अपने फूड को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर रखता है। जैसे प्लांट अपना फूड को स्टोर रखता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। हम लोग एनिमल क्या करता है? अपने फूड को स्टोर रखता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये ऑफकोर्स ये भी फंजाई भी अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर रखता है। तो आई होप कि आपको फंजाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, जो स्पेशल सिर्फ फंजाई में मिलेगा, वो है काइटिन का लेयर। ओके, उसका जो सेल वॉल जो होता है वो काइटिन नाम का कंपाउंड से बना हुआ है। दूसरा हाइफी, जो उसका थ्रेड है उसको क्या कहेंगे? हाइफी। माइसीलियम, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब फंजाई से रिलेटेड है। थैंक यू अलॉट।